پریز گاڈ. ہم نے پچھلی دفعہ خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہم نے لعنت اور برکت کے بارے میں ہم نے سیکھنا شروع کیا تھا، اور ہم نے بہت ساری وجوہات جو ہیں وہ خداوند کے کلام میں ہم نے دیکھی تھی کہ بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ پر کوئی بھی شخص جو ہے وہ لعنت میں آ سکتا ہے، اور اس طرح سے خدا کی بہت ساری برکات جو ہیں ان سے وہ محروم رہ سکتا ہے. اور آج ایک اگلا حصہ جو میں خاص طور پر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ آپ میرے ساتھ دیکھیں خداوند کی زندگی بخش کلام میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 16واں باب، اور اس کی پڑھیں جی 22ویں آیت پڑھیں جی، صرف ایک آیت 22ویں آیت. جو کوئی خداوند کو عزیز نہیں رکھتا ملعون ہو، ہمارا خداوند آنے والا ہے. پریز گاڈ. خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو. یہاں پہ نئے عہد نامے کے اندر، ہم پرانے عہد نامے کی اس وقت بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ نئے عہد نامے کے اندر بھی ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ لعنت آنے کا ایک بڑا سبب یہ ہو سکتا ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند نہیں مانتے. اور پولس رسول جو ہے وہ تمام کلیسیوں کو یہ بات لکھتا ہے، اور کرنتھیوں کی کلیسیا کو خاص طور پر یہ بات لکھتا ہے کہ جو کوئی خداوند کو عزیز نہیں رکھتا ملعون ہو. لعنتی ہے وہ شخص جو خداوند یسوع مسیح کو عزیز نہیں رکھتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے مسیحوں کے اندر، جس کی وجہ سے وہ لعنت کے متحد آ سکتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی مشکل جو ہے وہ آ سکتی ہے. جیسا کہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں لعنت کا سبب ہیں، اور اس سبب کی وجہ سے بہت سارے اثرات ان کے جو ہماری زندگیوں پر ہیں وہ ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر روپے پیسے کی کمی ہو سکتی ہے، گھر کی پرابلم ہو سکتی ہے، بچوں کی پرابلم ہو سکتی ہے، اور حادثات آ سکتے ہیں، کچھ بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. ان میں ایک بڑا سبب آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند جو ہے وہ نہیں مانتے. بائبل کے اندر خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ دی گئی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے ہم اس کو اپنا خداوند جو ہے وہ مانیں. میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب اس کا 2 باب، اعمال کی کتاب اس کا 2 باب، اور اس کی پڑھیں جی 36 آیت، ایکٹس چیپٹر 2 ورس 36. پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی. پریز گاڈ. تو خداوند یسوع مسیح کو پہلی بات یہ کہ خداوند جو کیا ہے وہ کسی شخص نے نہیں کیا، کسی رسول نے نہیں کیا، کسی اور ربی نے، فقیہ نے، فریسی نے، کسی نے نہیں کیا اس کو خداوند، بلکہ اس کو خداوند بنانے کا کام کس نے کیا ہے؟ خدا نے کیا ہے. اگر خدا نے خداوند یسوع مسیح کو اس نے خداوند بنایا ہے تو کتنا بڑا یہ کام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم اس کو اپنا خداوند جو ہے وہ مانیں. آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر لفظ خداوند جو ہے یہ تقریباً 7484 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے. 7484 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، اور اس میں سے 618 مرتبہ یہ لفظ جو ہے یہ نئے عہد نامے میں آیا ہے. لفظ نجات دہندہ صرف 55 دفعہ بائبل میں آیا ہے. نجات دہندہ، سیویئر صرف کتنی دفعہ آیا ہے؟ 55 دفعہ آیا ہے. لیکن لفظ خداوند جو ہے وہ اتنی دفعہ آیا ہے کہ ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ اتنی دفعہ اگر استعمال کیا گیا تو اس کی کیا اہمیت ہے. اور خدا نے خداوند یسوع مسیح کو جب اس نے خداوند کیا ہے تو ایک ایماندار جب وہ گناہ سے باہر نکلتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ جو 2 سٹیپ ہیں، اس کے لیے 2 کام اسے کرنے ہوتے ہیں، اور وہ 2 کام اسے کیا کرنے ہیں؟ رومیو کا خط اس کا 10واں باب، 2 کام کرنے ہیں. جب ہم گناہ کی حالت سے باہر نکل کر نجات کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو ایماندار کے پاس 2 اہم چیزیں ہیں جو کرنے کے لیے ہیں. پڑھیں جی رومیو کا خط اس کا 10واں باب، اور اس کی پڑھیں جی 8ویں آیت سے 9ویں آیت سے پڑھیں. تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا
तो निजात पाएगा। प्रेज गॉड। क्योंकि हाँ जी, पढ़ दिया जी। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। बस प्रेज गॉड कि अगर तू अपनी जबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाएगा। तो निजात के लिए कौन सी चीजें, दो अहम चीजें बताई गई हैं। पहली चीज हमें क्या करनी है, खुदावंद यस्सु मसीह को हमने अपना खुदावंद जो है वो तस्लीम करना है। और दूसरी बात है कि हमें इस बात पर ईमान रखना चाहिए, दिल से इस बात पर ईमान लाना चाहिए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया है। तो खुदावंद यस्सु मसीह जो है उसको अपना खुदावंद मानना हमारी निजात का एक अहम हिस्सा है और हमें सबसे पहले खुदावंद यस्सु मसीह को अपना खुदावंद मानने की जरूरत है। तो लफ्ज खुदावंद जो है ये अगर आप देखें तो इसका लफ्जी मतलब है आका, मास्टर, मालिक। और इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज लॉर्ड इस्तेमाल किया गया है जिसका सेम मतलब है। और इसका मतलब है कि हमारा कोई आका होना चाहिए, हमारा कोई मालिक होना चाहिए। तो एक ईमानदार जो है वो ईमान लाने के बाद उसकी सबसे बड़ी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ये है कि वो खुदावंद यस्सु मसीह को अपना मालिक जाने और उस मालिक की हर वक्त जो है वो फर्माबरदारी करे। आप मुझे बताएं कि एक नौकर जो है क्या वो अपनी मर्जी से सारे काम करता है? कौन बताता है उसको काम करने के लिए? और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मालिक उसको कहे कि तुम ये काम करो और वो कहे मैंने ये नहीं करना, मैंने ये करना है? ऐसा हो सकता है? मालिक जो होता है, आका जो होता है, उसका काम है हुक्म देना और नौकर का काम है कि उसकी फर्माबरदारी करे और जो हुक्म से दिया गया है उसको वो बजा लाए। इसका क्या मतलब है कि ईमानदार की जिंदगी का हर पल, हर लम्हा जो है वो क्या होना चाहिए? अपने आका की मर्जी के ऊपर जो है वो बस होना चाहिए। हमें जो कुछ खुदावंद कहता है करने के लिए, जो कुछ उसने हमें कहा है, हमें वो तमाम चीजें जो है वो हमें करने की जरूरत है। एक नौकर का काम सिर्फ यह है कि वो ऑर्डर को ले, हुक्म सुने और जो कुछ उसने कहा है उस पर उसी तरह से वो जो है वो अमल करे। अगर वो उस तरीके से अमल नहीं करता है, एक शख्स है वो सारा दिन कहता रहता है अपने मालिक को कि मालिक जी, मालिक जी, मालिक जी, मालिक जी, हाँ, और उसको कहता है जी लॉर्ड 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 कहता रहता है, लेकिन सारे दिन में कोई भी काम उसकी मर्जी से नहीं करता है। तो ऐसा नौकर जो है उसकी कोई रिहाई हो सकती है? हाँ? मेरे साथ देखिए लूका की इंजील उसका 6वां बाब, लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 6वां बाब और इसकी पढ़े जी 46 वर्ष। जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? अगर आपने अमल नहीं करना मालिक की बात पर, मालिक ने जो कुछ आपको हुक्म दिया है अगर आपने उसको पूरा नहीं करना तो फिर क्यों खुदावंद खुदावंद उसे कहते हैं? आगे क्या लिखा जी? जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जताता हूँ कि वो किसकी मानद है। वो उस आदमी की मानद है जिसने घर बनाते वक्त ज़मीन गहरी खोद कर चट्टान पर बुनियाद डाली। जब तूफान आया और सैलाब उस घर से टकराया तो उसे हिला ना सका क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। लेकिन जो सुनकर अमल नहीं लाता वो उस आदमी की मानद है जिसने ज़मीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब उस पर ज़ोर से आया तो वो फिल फौर गिर पड़ा और वो घर बिल्कुल बर्बाद हुआ। बस जी, यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील जो है उन्होंने कही है और उन्होंने कहा कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जिताता हूं कि वो किसकी मानद है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना आका मान लेते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम मुझे अपना आका मान लोगे, मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो तुम किसकी मानद ठहरोगे? तुम एक ऐसे शख्स की मानद होगे जिसने अपना घर जो है वो चट्टान के ऊपर बनाया है। और अगर तुम अमल नहीं करते हो तो तुम एक ऐसे बेवकूफ शख्स की मानद हो जिसने अपना घर जो है वो रेत के ऊपर बनाया है। और मत्ती की इंजील उसके
7वें बाब में इस बात को बड़ी तफसील के साथ हमें बताया गया है कि दोनों किस्म के घर जो हैं, एक चट्टान के ऊपर बनाया गया है, एक रेत के ऊपर बनाया गया है। और ये दोनों घर जो हैं, इनके ऊपर मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधी आई, पानी ने टकरे मारी, सैलाब आया, और दोनों में से कौन सा घर जो है वो बच गया? जो चट्टान के ऊपर था वो बच गया। इसका मतलब है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना मालिक मान लेते हैं, अपना खुदावंद मान लेते हैं, तो उसके बाद अगर जिंदगी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कितने भी बड़े तूफान आए, कितनी भी बड़ी मुश्किलात आए, उन सब में जो है हमें कामयाबी होगी, हम वहां से हिलेंगे नहीं। लेकिन अगर हम खुदावंद उसको नहीं मानते हैं, उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते हैं, तो बुरा वक्त जब आएगा तो उस वक्त जो है हम बच नहीं पाएंगे। तो कौन सा काम हमें करना चाहिए? खुदावंद के हुक्मों पर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? हमें उसके हुक्मों पर चलना चाहिए। क्यों? जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो फिर हम उस घर की मानद होंगे जो चट्टान के ऊपर बनाया गया है। और खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो मुझे खुदावंद खुदावंद सिर्फ कहते हैं, कोई फायदा नहीं है इसका। और बहुत सारे लोग जो है वो उसको खुदावंद मानते ही नहीं है। मेरे साथ एक देखें बड़ा इंपॉर्टेंट वाकया, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 26वां बाब और उसकी पढ़ें जी 21वीं आयत। ये खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसह जो है वो खा रहे हैं और तमाम शागिर्द वहां पे जमा हैं, और ये उस वक्त का वाकया है। पढ़े जी मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 26वां बाब और उसकी 21वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 21। और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो बहुत ही दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, आए खुदावन क्या मैं हूँ? उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने जवाब में कहा, ए रब्बी क्या मैं हूँ? उसने उससे कहा, तूने खुद कह दिया। बस जी, अब यहाँ पे देखें कि तमाम शागिर्द जो है 12 के 12 शागिर्द जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ मौजूद हैं, और ये आखिरी फसह का वक्त है। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़ेह तौर पर उनको बता दिया कि तुम में से एक शख्स जो है वक्त आता है कि वो मुझे पकड़वा देगा। और लिखा है कि हर एक उससे कहने लगा, ए खुदावंद क्या मैं हूं? हर एक ने कहा, क्या खुदावंद क्या मैं हूं? सब अफसोस इस बात से करने लगे, बहुत ही दिलगीर हुए कि किसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो मुझे पकड़वाएगा। उन्होंने कहा कि हर एक ने कहा कि ए खुदावंद क्या मैं हूं? लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने यह बात कही कि जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला वही मुझे पकड़वाएगा, तो उस वक्त यहूदा अस्करियोती जो था उसने अपना तबाक जो है हाथ जो है वो तबाक में डाला हुआ था। प्लेट के अंदर उस वक्त उसका हाथ था, और उसको यह पता था कि वो खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाने वाला है, और पकड़वाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो पकड़ कर ले जाएंगे। लेकिन याद रखें कि उसने ये नहीं कहा कि ए खुदावंद क्या मैं हूं। उसने कहा है, उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने जवाब में कहा, ए रब्बी क्या मैं हूं? तो आम शागिर्द जो है उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदावंद जो है वो माना था। लेकिन यहूदा अस्करियोती जो है उसने अपनी सारी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ रहते हुए भी उसने कभी भी खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदावंद नहीं बनाया था। वो उसको सिर्फ एक रब्बी के तौर पर, एक उस्ताद के तौर पर, एक टीचर के तौर पर सिर्फ उसको जानता था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। और आप देख सकते हैं कि चूंकि उसने सारी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदावंद नहीं बनाया, उसने इसकी वजह से क्या असर हुआ कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो पकड़वा दिया। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि, और सोचते भी हैं, ये सवाल भी उठता है कि यहूदा अस्करियोती जो है, क्योंकि खुदा का ये प्लान था कि वो पकड़वाएगा, सारा प्लान तो खुदा ने किया हुआ था, तो यहूदा अस्करियोती जो है वो बेचारा वो तो
वैसे ही फंस गया था, उसकी तो कोई गलती नहीं थी। लेकिन याद रखें कि ऐसा नहीं है, खुदा ने ऐसा नहीं किया है। आपको मालूम है कि इब्लीस जो है वो खुदा के नजदीक तरीन जो है वो रहता था। ऐसी था ना, बाइबल के अंदर लिखा है कि वो खुदा के तख्त के पीछे अपने पैरों को फैलाकर रखता था और वो खुदा को जानता था, सब कुछ उसे पता था। वो जानता था कि खुदा कौन है, उसकी क्या पावर है, उसका क्या सिस्टम है, क्या इंतजाम है। लेकिन उसके बावजूद भी जानते बूझते हुए भी उसने खुदा के खिलाफ जो है वो बगावत की। और अगर उसने बगावत की है तो फिर खुदा जो है वो सजा देने का हक रखता है। और इसी तरह से यहूदा इस्करियोती जो है वो 3.5 साल तक खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहा। हर वक्त उसके साथ रहता था और उसको पता था कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है। उसने खुदावंद यीशु मसीह के तमाम मौजज़ात देखे थे। उसने मुर्दों को जिंदा होते देखा था, उसने तूफान को थमते देखा था, उसने हर वो मौजज़ा देखा था जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया है। वो उनके साथ साथ रहता था और इसके बावजूद भी उसने सारी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदावंद नहीं माना। और उसने जानते बूझते हुए भी खुदावंद ने उसे मौका दिया कि वो खुदावंद यीशु मसीह को ना पकड़ाए। लेकिन आप जानते हैं कि ये खुदा का प्लान जो है नहीं था कि वो पकड़ाए। खुदा ने उसे मौका दिया है, लेकिन खुदा ये जानता था कि ये पकड़वाएगा। और उसने जानते बूझते हुए भी, खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी, उसको कभी अपना आका, अपना मास्टर, उसको कभी अपना लॉर्ड, कभी खुदावंद उसको नहीं माना, बल्कि वो उसके एक उस्ताद के तौर पर सिर्फ समझता रहा। आज भी बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया के अंदर मसीह कहलाते हैं और वो खुदावंद यीशु मसीह को एक बाइबल के अंदर का एक कैरेक्टर जानते हैं, एक नबी के तौर पर जानते हैं, एक अच्छा टीचर के तौर पर जानते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी में कभी भी खुदावंद यीशु मसीह को अपना आका नहीं मानते हैं, अपना खुदावंद नहीं मानते हैं। और हमें ईमानदारों को एक ही बात होनी चाहिए उनके पास कि उनका एक ही खुदावंद है, उनके बहुत सारे खुदावंद नहीं है। मेरे साथ देखें पहला कुरिन्थियों उसका 8वां बाब और उसकी पढ़े जी 5वीं आयत। अगरचे आसमान और ज़मीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, चुनाचे बतेरे खुदा और बतेरे खुदावंद हैं, लेकिन हमारे नज़दीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीज़ें हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही खुदावंद है, यानी यीशु मसीह, जिसके वसीला से सब चीज़ें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीला से हैं। बस जी, तो हमारा एक ही खुदा है और वो कौन है? हमारा बाप है। हमारा एक ही बाप है और एक ही हमारा खुदावंद है। और वो खुदावंद कौन है? लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीजें हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही खुदावंद है, यानी यीशु मसीह, जिसके वसीला से सब चीजें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीला से हैं। तो हमें निजात मिली या तो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मिली है। हमारे नजदीक सिर्फ एक ही खुदावंद होना चाहिए, एक ही आका होना चाहिए, एक ही हमारा मास्टर होना चाहिए और हमें उसी के हुक्मों पर अमल करना चाहिए और जो कुछ हमें वो कहता है हमें वो मानना चाहिए। तो पौलुस रसूल जब ये बात लिखता है कि अगर कोई खुदावंद को अजीज नहीं रखता तो वो मलाउन हो, लानती है वो शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदावंद नहीं मानता है। और आपको मालूम है कि यहूदा इस्करियोती जो है वो इसी वजह से वो लानती ठहरा। अगर आप मेरे साथ देखें ज़बूर 109 पढ़े जी, उसकी 8वीं आयत पढ़े जी। उसकी उम्र कोताह हो जाए और उसका मनसब कोई दूसरा ले ले। उसकी उम्र कोताह हो जाए और उसका मनसब कोई दूसरा ले ले। अब मेरे साथ देखिए अमाल की किताब उसका पहला बाब, अमाल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी पढ़े जी 20वीं आयत। क्योंकि ज़बूर में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई बसने वाला ना रहे और उसका ओहदा दूसरा ले ले। बस जी, तो किसके बारे में ये लिखा है? ये यहूदा इस्करियोती के बारे में लिखा है उसकी 18वीं आयत में कि उसने बदकारी की कमाई से एक खेत हासिल किया और सर के बल गिर पड़ा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी।
تو یہ کس کے بارے میں لکھا ہے؟ اس کا گھر اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے اور اس کا عہدہ دوسرا لے لے۔ تو یہاں پہ جب یہودا اسکریتی جو ہے وہ مر گیا تو رسولوں نے اس کی جگہ پہ ایک اور آدمی جو ہے وہ انہوں نے سلیکٹ کیا کہ وہ رسولوں کے اندر جو ہے وہ شمار ہو۔ تو یہ زبور 109 کے اندر جو لکھا گیا تھا یہ اس کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ اس کا عہدہ کوئی دوسرا لے لے۔ اب پڑھیں زبور 109 کی 17 آیت۔ بلکہ لعنت کرنا اسے پسند تھا سو وہی اس پر آ پڑی۔ تو یہ پورا زبور جو ہے یہ یہودا اسکریتی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ لعنت اسے پسند تھی اور وہی اس پر آ پڑی، کیونکہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو اس نے اپنا خداوند جو ہے وہ نہیں بنایا۔ اس نے ساری زندگی 3.5 سال تک جتنا بھی عرصہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہا، اس نے خداوند یسوع مسیح کو صرف ایک ربی کے طور پر جانا، ایک استاد کے اور ایک ٹیچر کے طور پر اس کو اس نے جانا۔ میرے عزیزو، آج میں اور آپ بھی خداوند یسوع مسیح کو جب تک اپنا خداوند نہ بنا لیں، جب تک اپنی زندگی کا مالک نہ بنا لیں، اس وقت تک ہم اس سے برکت نہیں پا سکتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایماندار تو بن جاتے ہیں، وہ نجات بھی پا لیتے ہیں، لیکن وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند جو ہے وہ نہیں بنا پاتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ خداوند کو اپنا خداوند بنا لینا؟ اس کی ہر بات کے اوپر عمل کرنا، جس طریقے سے وہ ہمیں گائیڈ کرے ہم اس طریقے سے کام کریں۔ اور یہ خدا کا پاک روح ہے جس کے وسیلہ سے ہم اسے خداوند کہہ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں تیار کرتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا آقا تسلیم کریں اور اس کے حکموں پر عمل کریں، اور جو کچھ وہ کہتا ہے ہم اس کو کر سکیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی پڑھیں جی 3 آیت پڑھیں جی، بلکہ اس کی پہلی آیت سے پڑھ لیں۔ اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گونگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے۔ پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر یہ کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ پریز گاڈ، نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ تو ہمیں خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں تیار کرتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند مانیں، اور یہی نہیں بلکہ ہم اس کے حکموں پر عمل کر سکیں۔ خدا کا پاک روح اس لیے ہماری زندگی میں نہایت اہم ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کر سکیں، ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا آقا جو ہے وہ مان سکیں۔ ہماری ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم مسیح ہوتے ہیں، ایماندار بن جاتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو ہم مرضی اپنی کرتے ہیں۔ ہم نہ تو پاک روح سے ہم پوچھتے ہیں، نہ خدا کے کلام کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں، بلکہ ہر وہ کام جو ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے ہم اس کو کرتے ہیں۔ اور ضروری بات ہے کہ ہم خدا کے پاک روح کی مدد لیں اپنے زندگی کے ہر کام کے لیے، اور ہر ایریے میں ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند مانیں۔ اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو نئے عہد نامے کے اندر جتنی بھی 4 اناجیل ہیں ان کے اندر ہمیشہ یہ لکھا گیا کہ یسوع نے یہ کیا، پھر یسوع نے یہ کیا، پھر یسوع نے یہ کیا، پھر یسوع وہاں سے چل پڑا۔ لیکن جیسے ہی ہم اعمال کی کتاب میں جاتے ہیں اور اس کے دوسرے باب میں، تو وہاں پہ جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ خدا نے خداوند یسوع مسیح کو اس نے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ اور اس کے بعد تمام نئے عہد نامے کے اندر آخر تک آپ کہیں بھی جائیں گے تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے خداوند یسوع مسیح۔ اس کا مطلب ہے کہ نجات کا کام خداوند یسوع مسیح نے جب تک کمپلیٹ نہیں کیا تھا اس وقت تک شاید وہ میرا اور آپ کا آقا نہیں تھا، ہمارا خداوند نہیں تھا، لیکن نجات کا کام جب اس نے کمپلیٹ کر دیا ہے تو اس کو خدا نے اسے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ پریز گاڈ۔ اور آج میں اور آپ نجات پانے کے بعد اسے صرف یسوع نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم اسے صرف مسیح نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہمارے لیے سب سے پہلے لفظ جو آئے گا
वो है खुदावंद यीशु मसीह। हमारी जिंदगी का आका, हमारी जिंदगी का मालिक हमारा खुदावंद यीशु मसीह। और वो खुदावंद एक ऐसा खुदावंद नहीं है कि हम बहुत सारे खुदावंद जो है वो हम रख ले जैसा हमने देखा है, बल्कि वो जितने भी इस दुनिया के अंदर खुदावंद हैं उन सब का जो है वो खुदावंदों का खुदावंद कहलाता है। मेरे साथ देखें तीमुथियुस के खत में, जिसे वो मुनासिब वक्त पर नुमाया करेगा, जो मुबारक और वाहिद हाकिम, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। बस जी, कौन है वो? वाहिद हाकिम है। वो हमारी जिंदगी के ऊपर और कोई हुकूमत करने वाला नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो एक वाहिद हाकिम है जो कि खुदावंदों का खुदावंद है। वो तमाम खुदावंदों के ऊपर जो है वो हमारा खुदावंद है। हमें कोई भी आका दूसरा जो है वो जो कुछ भी कहता है हम वो नहीं करते, बल्कि जो खुदावंद यीशु मसीह हमें कहता है वो हमें करना है। और ये एक बड़ा और ऐसा एरिया है जहां पे मसीह लोग जो हैं वो लानत के अंडर में आ जाते हैं। जब वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना आका, अपना खुदावंद नहीं मानते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें खुदावंद यीशु मसीह को अपना आका जो है वो तस्लीम करना चाहिए। मेरे साथ एक और हवाला देखिए, मुकाशफा की किताब उसका 19वां बाब और उसकी पढ़ेंगे 16वीं आयत। और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। हाँ जी, क्या लिखा है जी? उसकी रान पर क्या लिखा है? उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। तो हमें एक ही बात हमें समझ आनी चाहिए कि अगर हम खुदावंद को अपना खुदावंद नहीं मानते हैं तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पुराने यादनामे में आप देखें, जब बनी इस्राएल कौम जो है जब वो मुल्क मिस्र से बाहर निकली और वो जानते थे कि खुदा उनको वहां से निकाल लाया है, वो जानते थे कि खुदा ने उनके लिए बहरा कुलसुम को 2 टुकड़े कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी खुदा को अपना खुदावंद नहीं माना।